Hello my dear students, welcome back again for our today's lecture of class 5, subject English reader, chapter number 2, A Great Man, and this is the lecture number 1 of your book term 3 essence, and today's topic is a great man lesson. Okay, so we will do today its word meaning and I'll take its explanation also. But beta, today only I will explain you this lesson only half lesson we will cover. Okay, next half means the left part which we will complete in next lecture, in lecture number 2, along with some book exercise also. So because this lesson is so lengthy, that is why I have divided this lesson into 2 parts. In lecture number 1 I cover only half lesson, in lecture number 2 I cover the left part. Okay, so let's start. So first of all we will do word meaning. Only few word meanings we will do that are on means that will be covered in this half lesson. Okay, only those word meaning we will cover today. So please take out your notebook in which you will write word as well as I'll teach you, I'll tell you meanings also. Let's start word meaning. First is ascetic, A-S-C-E-T-I-C. Ascetic means one who lives a very harsh life of extreme discipline. Okay, means we can say tapasvi in Hindi. Ascetic means tapasvi. Second word meaning is monk. Monk means a holy man, we can say sadhu. Third word meaning is locks. Locks means curly hair, we can say छल्लेदार बाल, घुंघराले बाल. Okay. Next is gorgeous. We always use this word in our day-to-day life. Gorgeous means bhavya, ati sundar, or we can say. Okay, that is bhavya. Next is fifth word meaning is precious. It's not precious, it's precious. Precious means कीमती. Precious means कीमती. Next is saffron robes. S-A-F-F-R-O-N. Saffron, R-O-B-E-S. Saffron robes means deep yellow garment. Means केसरिया वस्त्र. केसरिया वस्त्र. Okay. Seventh is serene. S-E-R-E-N-E. Serene. Serene is peaceful, calm, or we can say shant. Next is beg. B-E-G. Beg. It's not bag, it's beg. Beg is भीख मांगना. Okay, beg is भीख मांगना. Next is struck. S-T-R-U-C-K. Struck. Struck is impressed, or we can say प्रभाव डालना. But here it is in third form of verb, that is why we will say प्रभाव डाला. Next is magnificent. Magnificence. Magnificence means grand look, or we can say शानदार.
Okay, last is means according to this means 2 pages we will cover today, means 1.5 pages we will cover today, or the word meaning which are in these 2 parts, only these word meaning we are going to cover. Okay beta, so next word meaning is vanish. Here you can write 11th word meaning vanish. Vanish means disappear, or we can say लुप्त होना. ओके, लुप्त होना. And next word meaning is harsh. 12th word meaning is harsh. HARS is harsh. Harsh is beta कठोर. Okay, harsh means कठोर. So we are going to cover only 12 word meanings today, and the left word meanings, means the word meaning which are left today, we will cover in next lecture. Okay, so now we will start our today's lesson. Let's remind one more time. Ascetic is tapasvi, monk is sadhu, locks is challe wale baal, gorgeous is bhavya, precious is कीमती, saffron robes means केसरिया वस्त्र, serene शांत, beck भीख मांगना, struck प्रभाव डाला because it is given here impressed, magnificence is शानदार, vanish is लुप्त होना, and harsh is कठोर. So 12 word meanings, do accordingly in your English notebook. Now let's start the lesson. So the lesson starts from here, page number 17 it is given. A great man. A great man means एक महान व्यक्ति. Here you can see few pictures of great men, means there are 5 pictures of great men. You have to write accordingly who are they. Please write down. Pause the video and write down. Then I will tell you their name. It is given here. Write the names of these great men shown in these pictures. Means in the 5 pictures some great men are being showed. Okay. So you have to tell who are they. You can write their name accordingly. Means there is a one box also given below these pictures. Write their name in this box. So let's start. First picture is of Mahatma Gandhi. Second is Lord Jesus. Third picture is of Mahavir. Okay. Fourth picture is of Mother Teresa. Fifth picture is of Gautam Buddha. So today in this lesson we are going to read about Gautam Buddha. Okay beta? Gautam Buddha. His name, his another name was Siddharth. Okay, but as he was known by the whole country, by the whole world, that is why or we can say he was a philosopher also. He would teach the students about the philosophy, about the life rules, about the values of our life, about the meditation also. Okay, he was a visionary also. So in the whole world he was known as Siddharth Gautam. He was known as Gautam Buddha, but his childhood name was Siddharth. From Siddharth he turned into Gautam Buddha because he was known by the whole world then. Why? Because of his philosophy, his life rules, and whatever he had learned from his teachers. Okay, so today we are going to today we are going to learn about him only few things, not completely, because it's not very easy for us to know about him completely. Okay, you can read about him also through net, through books also. Let's start the lesson. Gautam Buddha was one of the greatest men the world has known. Means Gautam Buddha क्या थे? बहुत सबसे महान व्यक्ति थे जिनको पूरी दुनिया जानती थी और जानती है भी. He was a reformer. वो एक रिफॉर्मर थे, मतलब उन्होंने इस दुनिया में चेंज लेकर आए थे. बिकॉज ही ब्रॉट सम चेंजेस इन द वर्ल्ड, दैट इज वाई वी कॉल दैम रिफॉर्मर ऑल्सो. रिफॉर्मर मीन्स अ पर्सन हु ब्रिंग चेंजेस इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी. ओके, ही वॉज द काइंड मैन एंड एनिमल्स. ही वॉज काइंड टू मैन एंड एनिमल्स मीन्स वो काइंड थे. ही वॉज काइंड टू मैन एंड एनिमल्स. ही यूज्ड टू बी वेरी काइंड. He showed love to animals and men also. Anyone who saw him at once became his follower. Means the people who would saw him
in once only he would become his follower also. Means he used to follow him, he used to follow his rules, life, teaching rules, or he would follow everything whatever he used to teach. Kings and common people honored him. Kings and common people means the people who used to believe in these ancient time would honored him. Honored him means बेटा he would respect him, मतलब कि वो क्या करते थे, सम्मान करते थे. Gautam Buddha was born as Prince Siddharth of Kapilavastu, now in Nepal. Gautam Buddha was born as Prince Siddharth. He was born as Prince Siddharth. As I told you his name in the earlier also, in the starting also, that he was Siddharth, Prince Siddharth of Kapilavastu. Means in where? Kapilavastu. Now this place is in Nepal. At his birth, astrologers means who tell about us means what we will do in our life. Astrologers predicted means made a prediction, means उन्होंने भविष्यवाणी करी that he would either be a great emperor or a great ascetic. Means या तो वो क्या होंगे, either he would be a great emperor or a great ascetic. Means he would be a great emperor, या तो वो बहुत महान एक emperor होंगे, शासक होंगे, और a great ascetic, और या फिर वो एक बहुत बड़े तपस्वी होंगे. Okay. Siddhartha was a kind young man. Siddhartha was a kind young man. He was a very kind young man. He thought that the world was full of pain. He used to think that the world was full of pain. वो सोचते थे कि जो दुनिया है उसमें सब सिर्फ दर्द भरा हुआ है. मीन्स ओके, सो मतलब यहाँ पे हमें लाइफ में only we can get here pain only. He looked for a way of removing the sufferings of people. Then he looked for some way. Means he find out a way how he can remove the suffering of people. Suffering means लोगों के दुखों को कैसे वो दूर कर सकते हैं. उन्होंने इसके लिए रास्ता ढूंढे. He left his home when he was 29 years old and became a wandering monk. Means he left his home because उन्होंने अपने घर छोड़ दिया when he was only 29 years old. Okay, at this age he left his home and became a wandering monk. And what did he become? He became a wandering monk. मतलब इधर उधर घूमने वाले एक monk बन गए, साधु बन गए. After leaving home, Prince Siddharth reached राजगृह, द कैपिटल ऑफ ग्रेट किंगडम ऑफ मगध, मॉडर्न बिहार. घर छोड़ने के बाद में प्रिंस सिद्धार्थ कहाँ पहुंचे? राजगृह पहुंचे, जो किसी कैपिटल है, ग्रेट कैपिटल किंगडम ऑफ मगध, जो मगध की कैपिटल थी. मगध मीन्स मॉडर्न बिहार, जो आज मॉडर्न बिहार है उसकी जो कैपिटल थी राजगृह, वो वहां पहुंच गए. किंगडम मीन्स राज्य होता है बेटा. ओके, एट द टाइम नाउ वी कैन कॉल दैट स्टेट, और उस टाइम पे किंगडम बहुत बड़ा साम्राज्य होता था. He was now living as wandering ascetic. अब वो कैसे रह रहे थे? एक साधु, एक तपस्वी बनकर रह रहे थे. He had cut off his beautiful curly locks and given away his gorgeous silken robes and precious jewels. Means उन्होंने अपने बालों को कटवा लिया, घुंघराले बालों को, जो उनके घुंघराले बाल थे. And given away his gorgeous silken robes, और अपने जो उनके वस्त्र थे सिल्कन, जो उनके गॉर्जियस, जो भव्य कपड़े थे, उन्होंने वो भी त्याग दिए. एंड प्रेशियस ज्वेल्स, और जो ज्वेलरी वो पहना करते थे, ही यूज्ड टू वियर ज्वेलरी ऑल्सो, बिकॉज एज अ सन ऑफ अ प्रिंस यू हैव टू वियर सम ज्वेलरी ऑल्सो. ओके, एंड ही गिवन अवे दिस ज्वेल्स ऑल्सो. ही वॉज ड्रेस्ड इन ऑर्डिनरी सैफरन रॉब्स worn by those who had renounced the world. मीन्स अब वो कैसे ड्रेस हो गए थे? ही वॉज ड्रेस्ड इन ऑर्डिनरी सैफरन रॉब्स. अब वो केसरिया रंग के कपड़ों में उन्हें, अब वो केसरिया वस्त्र पहनने लगे थे. ठीक है, worn by those who had renounced the world, उनकी जो ऐसे लोगों के द्वारा जो ऐसे मतलब कि इस वर्ल्ड में जो रिनाउंस होता है, who had renounced the world मीन्स जो वर्ल्ड में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, ऐसे लोग केसरिया वस्त्र जो पहनते थे उनकी तरह ही उन्होंने केसरिया वस्त्र पहनना स्टार्ट कर दिया. ओके, इवन एज अ मॉन्क सिद्धार्थ लुक्ड इम्प्रेसिव. मॉन्क बनने के बाद भी, साधु बनने के बाद भी सिद्धार्थ कैसे दिखते थे? इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले, इम्प्रेसिव, अच्छे लुक में दिखते थे वो. He was extremely handsome and his face and body seemed to shine with a golden glow because he looked so impressive. That is why he was so handsome also. वो handsome भी थे. His face, his body, उनकी body shine करती थी. कैसे? golden glow से, चमकते हुए, मतलब भूरे भूरे रंग से ऐसा लगता था वो बहुत चमक रहे हैं. ओके, ही वॉज टॉल एंड वेल बिल्ड. वो टॉल भी थे, लंबे भी थे, और वेल बिल्ड मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ था. हिज वॉइस वॉज डीप एंड पावरफुल.
येट स्वीट एंड प्लीजेंट, उनकी जो वॉइस थी बहुत डीप थी, गहरी थी और पावरफुल थी, लेकिन वो स्वीट भी थी और प्लीजेंट भी, सबको प्यारी भी लगती थी उनकी वॉइस। द लुक ऑन हिज फेस वॉज सेरेन एंड डिग्निफाइड, उनका जो लुक था फेस पे वो एकदम शांत था, शांत फेस था उनका बिल्कुल, और वो ऐसे लगते थे थोड़ा अभिमानी, जैसे थोड़ा एटीट्यूड में हो, ऐसे वो दिखते थे, बट वो ऐसे थे नहीं। ही हैड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स विद हिम, ही हैड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, उनके अनुयायी भी थे, फॉलोअर्स मतलब जो उनको फॉलो करते थे, जो उनकी बात मानते थे, ठीक है। ही यूज्ड टू बैग फॉर हिज फूड, वो हमेशा अपने खाने के लिए भीख मांगा करते थे। He had a bowl in his hand and stood in front of house with his arm outstretched. उन्होंने क्या करा, एक दिन अपने हाथ में एक बाउल लिया, ठीक है, कटोरा लिया, जैसे यहाँ पे ले रखा है पिक्चर में देख सकते हो आप, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हाउस, एक घर के आगे खड़े हो गए, विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच्ड, और अपनी बाहें, आपने जो हाथ था उसको आगे फैला दिया। He didn't ask for food but waited for few minutes and moved on to another house. उन्होंने खाना नहीं मांगा, बट कुछ समय वहां वेट किया, इंतजार किया, और फिर दूसरे घर में वो चले गए। जब वहां पे उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्होंने खाना नहीं मांगा, सिर्फ उन्होंने हाथ को फैलाया, आउटस्ट्रेच किया, विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच, ओके। ही हैड अ बाउल इन हिज हैंड, ठीक है। ही हैड इंटेंशन टू टेक फूड बट ही डिडंट गेट फूड देयर, ही वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन ही मूव टू अनदर हाउस। ईच डे ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम ओनली वन हाउस होल्ड, हर दिन को सिर्फ उनको एक ही घर से खाना मिलता था। Everyone who saw him was struck by his magnificence, जो भी उनको देखता था वो उनके शानदार लुक को, भव्य लुक को देख के क्या जाता था, उनके ऊपर स्ट्रक, उनके लुक को बहुत ज्यादा प्रभाव डालता था, उनको देख एकदम चौकन्नित हो जाता था। People followed him just to have a longer look at him or hear him speak. लोगों को इसलिए फॉलो करते थे ताकि वो उनके इस लुक को देख सके और उनकी बातों को वो सुन सके। They spoke to each other about him and urged everyone to meet him. वो एक दूसरे से उनके बारे में बातें करते थे और आग्रह करते थे कि वो सबसे मिले, हैं, सबसे कहते थे urge everyone to meet him, कि वो सबसे ये भी कहते थे कि वो जाके उनसे मिले, सबको अर्ज भी करते थे, आग्रह भी करते थे। for he didn't seem an ordinary monk, ओके, क्योंकि वो एक साधारण साधु की तरह नहीं दिखते थे, वो एक बहुत ही दिव्य साधु की तरह, मीन्स ही लुक्ड वेरी मैग्निफिसेंस। दे केप्ट अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस एज दे डिड नॉट विश टू अनॉय हिम, ओके। वो उनसे मतलब क्या करते थे, लोगों से एक थोड़ी रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, मतलब थोड़ी सी उनसे दूरी बना के रहते थे, क्योंकि वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, ठीक है। मतलब जो लोग थे वो उनसे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखते थे, क्योंकि वो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। उनको वो फॉलो तो करते थे, लेकिन उनसे थोड़ी डिस्टेंस भी बनाते थे ताकि वो उनसे नाराज ना हो, क्योंकि अगर वो नाराज हो जाते उनसे तो वो उनको दोबारा उनके फेस को नहीं देख पाते या फिर उनसे बातें नहीं कर पाते, उनकी बातें सुन नहीं पाते, ओके। सम सोल्जर्स ऑफ Bimbisara, the king of Magध, saw him and went to the palace to tell the king about this extraordinary man. कुछ जो सोल्जर्स थे बिम्बिसारा के किंगडम के, जो कि बिम्बिसारा द किंग ऑफ मगध, जो मगध का जो राजा था बिम्बिसारा, वहां के जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसको देखा, किसको, सिद्धार्थ को देखा, एंड वेंट टू द पैलेस टू टेल द किंग अबाउट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। और वो पैलेस में, पैलेस मतलब बेटा, पैलेस होता है बेटा महल, और महल में जाके राजा को उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक के बारे में उनको बताया कि वो कितने असाधारण लग रहे हैं। They said, "O king, there is a monk newly arrived in the city who is no ordinary human being." उन्होंने कहा, हे राजा, हमारे शहर में एक नया मॉन्क आया है, एक साधु आया है, ठीक है। Who is no ordinary human being, जो कि एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा है। He seems to be divine, such is the glow on his face and body. वो एक डिवाइन, एक भव्य आत्मा की तरह दिख रहा है, भव्य या वी कैन से दिव्य आत्मा की तरह दिख रहा है, ओके। वो बहुत दिव्य दिख रहा है, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि गॉड है कोई। सच इज द ग्लो ऑन हिज फेस एंड बॉडी, और उनकी जो फेस पे जो ग्लो है उसको देख के ये लग रहा है कि वो कोई एक भगवान है, ठीक है। वी कांट से इफ ही इज अ गॉड और अ मैन, हम ये नहीं कह सकते कि वो भगवान है या आदमी है। ही इज श्योरली अ ग्रेट बीइंग, वो मतलब हमें पक्का लग रहा है कि वो कोई ना कोई महान आत्मा है, ठीक है, कोई असाधारण व्यक्ति तो नहीं है, कोई महान आत्मा है। किंग बिम्बिसारा वॉज इंटरेस्टेड, अब जो किंग थे
बिम्बिसारा जो किंग थे वो अब बहुत इंटरेस्टेड हो गए उसकी बातों में। ही डिसाइडेड टू लुक फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को मतलब डिसाइड किया कि वो खुद जाके उनको देखेंगे। ही वेंट टू द रूफ ऑफ द पैलेस, वो पैलेस की रूफ पर गए, छत पर गए, मतलब अपने महल की छत पर गए। ही सॉ द यंग एस्थेटिक एंड हिज मार्वलस लुक, उन्होंने उस यंग तपस्वी को देखा और उसके अनोखे रूप को, मार्वलस लुक मतलब उनके अनोखे रूप को देखा। He told his soldiers follow him and find out more about him, उन्होंने अपने सोल्जर्स से कहा, मतलब अपने जो उनके सैनिक थे उनसे कहा कि उसको फॉलो करो और ढूंढो कि वो कहाँ है, सॉरी एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हिम, और उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा और ज्यादा जानने की कोशिश करो। इफ इज नॉट अ मैन ही विल वैनिश, अगर वो एक आदमी नहीं होगा तो वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है, लुप्त हो जाएगा। एज सुन एज ही लीव्स द सिटी, जैसे ही वो एक शहर को छोड़ के चला जाएगा, अगर वो एक आदमी नहीं होगा तो वो इस शहर को छोड़ के चला जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इफ ही इज अ गॉड, अगर वो एक भगवान है, ही विल वैनिश बाय द वे ऑफ एयर, अगर वो एक भगवान है तो वो हवा में लुप्त हो जाएगा कहीं ना कहीं। इफ ही इज अ ह्यूमन बींग, ओके, अगर वो एक इंसान है मतलब एक ह्यूमन बींग है हमारी तरह ही विल ईट द फूड दैट इज गिवन टू हिम, वो खाना खाएगा जो उसको हमने दिया है। तो उन्होंने, किंग ने ये सब बातें अपने सोल्जर से कही, ठीक है। सिद्धार्थ वेंट टू द रिवर, अब जो सिद्धार्थ थे वो नदी के पास गए एंड हैड अ बाथ, और वहां जाकर उन्होंने एक बात ली, मतलब उन्होंने नहाए। देन ही क्लाइंब्ड अ हिल, उसके बाद वो एक पहाड़ी पे चढ़ गए एंड एट हिज फूड सिटिंग ऑन अ रॉक आउटसाइड हिज केव, और उन्होंने अपनी गुफा के बाहर जाके बैठ के एक चट्टान के ऊपर खाना खाया। द सोल्जर्स रिपोर्टेड दिस टू किंग भीमबिसारा, अब जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये सारी बातें किसको बताई, किंग भीमबिसारा को ये सारी बातें बताई। ही डिसाइडेड टू मीट हिम, और उन्होंने किंग बिसारा ने डिसाइड करा कि वो उससे अब मिलेंगे। सिद्धार्थ वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री व्हेन भीमबिसारा मेट हिम, सिद्धार्थ क्या थे उस टाइम पे एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, इट इज गिवन। व्हेन भीमबिसारा मेट हिम, जब भीमबिसारा उनसे मिले। He saluted the young ascetic and said, उन्होंने सैल्यूट किया, नमस्कार किया उस यंग तपस्वी को, उस यंग मतलब उस नौजवान तपस्वी को, और कहा यू आर श्योरली अ मैन ऑफ हाई बर्थ, मतलब आप 100% मुझे लगता है कि आप पक्का ही कोई एक आदमी हो जो उनका जन्म किसी अच्छे घराने में हुआ है। द हार्श लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक इज नॉट फॉर यू, मतलब जो एक तपस्वी की जो लाइफ होती है बेटा वो बहुत हार्श होती है, कठिन होती है, बिकॉज दे लिव इन फॉरेस्ट एंड दे ईट द फूड बाय बैगिंग, ओके, वो खाना भी मांग के खाते हैं, उनकी हार्श लाइफ होती है। दे लिव ऑन रॉक्स इन द केव्स ऑल्सो, दैट इज वाई ही सेड कि तुम्हारी जो लाइफ है, जो एस्थेटिक की लाइफ है वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ क्या होती है, बहुत हार्श होती है, बहुत कठिन होती है, और तुम तो वैसे ही तुम बड़े स्वीट दिखते हो, मार्वलस लुक है तुम्हारा, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए ये लाइफ नहीं है। आई शेल गिव यू हाई ऑफिस इन माई कोर्ट, मैं तुम्हें अपने कोर्ट में, अपने दरबार में एक बहुत बड़ी हाई पोस्ट दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट दूंगा, तुम मेरे दरबार में आ जाओ। यू कैन बी माई मिनिस्टर एंड एडवाइस मी, तुम मेरे मिनिस्टर बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो और मुझे सलाह दे सकते हो, ओके। सो टुडे वी विल कवर अप टू हियर ओनली। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे के लिए बेटा आपको यू हैव टू रीड योरसेल्फ the remaining part, okay, the last part which we are not going to cover today, and you will tell me what is happening then, उसके बाद में क्या हो रहा है। so up to here we had covered, यहाँ तक हमने कवर कर दिया। you have to read the same lesson again, do the word meaning in your English notebook, okay, and for next part come and watch in next lecture, in lecture number 2. so your today's homework is do this word meaning in your English notebook. This is your homework, okay. do this word meaning in your English notebook. How many word meanings we have done today? 12 word meanings. So do this word meaning in your English notebook. So my dear students, thank you for watching this lecture, and for the remaining part and for to know more about Siddharth, come and watch in next lecture. Bye bye everyone.